عین التمر کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید ہرا کی طرف واپس پلٹنا چاہتے تھے، مگر آپ کو اسی دوران حضرت ایاز بن غنم کا پیغام ملا جو دومت الجندل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ میرا لشکر شکست کے بہت قریب ہے، اگر مدینے یا عراق سے فوجی مدد نہ ملی تو ہمیں دومت الجندل میں شکست کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ ایاز بن غنم کا پیغام ملتے ہی حضرت خالد بن ولید عین التمر سے اپنی 3000 کی فوج لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دومت الجندل کا شہر ویسے تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح کر لیا تھا۔ جب 626 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ دومت الجندل کے قبائل عرب سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کی سرکوبی کے لیے اگست یا ستمبر 626 عیسوی میں 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر دومت الجندل کی طرف آگے بڑھے۔ اسلامی لشکر رات کو سفر کرتا اور دن کو چھپ جایا کرتا تھا تاکہ دشمن کو ان کی پیش قدمی کی خبر نہ مل سکے، مگر جب اسلامی لشکر دومت الجندل پہنچا تو دشمن شہر چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ اس طرح بغیر کسی لڑائی کے دومت الجندل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کر لیا تھا۔ دومت الجندل کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 5 دن قیام فرمایا اور اس کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے۔ ہجرت کے 9ویں سال یعنی 630 عیسوی میں جب رومی اور غسانی فوجوں نے عرب کی سرحد کی طرف پیش قدمی شروع کی تو ان فوجوں کی نقل و حرکت کی خبر جب مدینے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر رومی شہنشاہ ہرقل اور غسانی بادشاہ جبلہ کے مقابلے کے لیے مدینہ سے عرب کی سرحد یعنی تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ ہرقل اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر واپس پلٹ گیا۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا ہرقل تو واپس پلٹ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنے یا واپس مدینہ آنے کے بجائے اس علاقے میں رہنے والے عرب قبائل کو زیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس علاقے کے اہم مقامات ایلا، جربہ، ازروح اور مکنا تھے جو خلیج عقبہ کے ساحل پر واقع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور یہ تمام قبائل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اس علاقے میں تبوک سے تھوڑا ہی دور دومت الجندل کا شہر بھی تھا۔ دومت الجندل اس زمانے میں تجارتی لحاظ سے بہت زیادہ اہم تھا۔ یہ شہر فارس، شام، مصر اور عرب کے تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہاں کے بدوی قبائل ان تجارتی راستوں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دومت الجندل کا حاکم کندا قبیلے کا عیسائی شہزادہ عقیدر بن عبد الملک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومت الجندل کو بھی زیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے نومبر 630 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید کو 400 سواروں کا ایک دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دومت الجندل پہنچ کر عقیدر بن عبد الملک کو گرفتار کر لیا۔ عقیدر کے بھائی حسان نے جب مزاحمت کرنا چاہی تو وہ لڑائی کے دوران مارا گیا، لہذا حضرت خالد بن ولید نے عقیدر کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عقیدر نے آپ کی اطاعت قبول کی اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس واقعے کے بعد دسمبر 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ بعض روایتوں کے مطابق 631 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف بنو کلب کے بت توڑنے کے لیے روانہ فرمایا، اور ود کا بت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یہ حضرت خالد بن ولید کے حملے سے پہلے دومت الجندل میں واقع تھا۔ دومت الجندل پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے ود کے بت سمیت تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اپنے بتوں کا دفاع کرنے کے لیے جو بھی بدوی قبائل ان کے مقابلے پر آئے ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور حضرت خالد بن ولید اس کامیاب مہم کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب تمام عرب میں فتنوں نے جنم لیا تو عقیدر نے بھی بغاوت کر دی۔ بعض روایتوں کے مطابق عقیدر نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مگر آپ کے وصال کے بعد وہ اسلام سے بھی منحرف ہو گیا۔ عرب کے فتنوں کو دبانے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید یمامہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو اسی دوران خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایاز بن غنم بھی دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔
अयाज बिन गनम ने दौमतुल जंदल पहुंचकर शहर का मुहासरा कर लिया, मगर उकैदर ने कबीला कलब और गस्सान के ईसाइयों को भी अपने साथ मिला लिया। इन कबाइल को अपने साथ मिला लेने से उकैदर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अयाज बिन गनम ने दौमतुल जंदल का मुहासरा तो कर लिया, मगर इनकी फौज की तादाद इतनी ज्यादा कम थी कि वो शहर का घिराव नहीं कर सकते थे। अयाज बिन गनम के लश्कर की कम तादाद को देखकर किले की फौज ने कई मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमले किए, मगर मुसलमानों ने इन हमलों को पसपा कर दिया और इसी तरह इस मुहासरे को कई हफ्ते गुजर गए। इस लंबे मुहासरे से दोनों फौजें ही तंग आ चुकी थीं। आखिरकार हजरत अयाज बिन गनम के एक सालार ने उनको मशवरा दिया कि हमें हजरत खालिद बिन वलीद से मदद तलब करनी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह ना तो शहर को फतह कर सकते हैं और ना ही पसपाई इख्तियार कर सकते हैं। हजरत अयाज बिन गनम ने इस राय से इत्तफाक किया और दौमतुल जंदल के तमाम हालात लिखकर हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ कासिद रवाना कर दिया। जब ये कासिद हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा तो इस वक्त तक हजरत खालिद बिन वलीद सासानियों को कई शिकस्तें देने के बाद ऐनुल तमर को भी फतह कर चुके थे और ऐनुल तमर से हिरा की जानब रवाना होने की तैयारियां कर रहे थे। बाज़ रवायतों के मुताबिक हिरा की फतह के बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को लिखा था कि अब हिरा में अयाज बिन गनम का इंतज़ार करें और जब वो दौमतुल जंदल को फतह करके हिरा पहुँचें तो अयाज को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ें। मगर हजरत खालिद बिन वलीद सासानी फौजों को अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मौका नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर अंबार और ऐनुल तमर को भी फतह कर लिया। और जब अंबार और ऐनुल तमर की फतह की खबर मदीना भेजी तो खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी कासद यानी हजरत वलीद बिन उकबा को दौमतुल जंदल की तरफ रवाना फरमाया। जब हजरत वलीद बिन उकबा दौमतुल जंदल पहुंचे तो इन्हें पता चला कि अयाज बिन गनम को कमक की ज़रूरत है, तो उन्होंने बजाय मदीना वापस जाने के इराक जाने का फैसला किया, जो दौमतुल जंदल के ज़्यादा करीब था। और अयाज बिन गनम के कासिद के चंद दिन बाद वो भी ऐनुल तमर पहुंच गए और हजरत खालिद बिन वलीद को बताया कि खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही हुक्म है कि आप पहले अयाज बिन गनम को अपने साथ मिलाएं, इसके बाद आगे पेशकदमी शुरू करें। ऐनुल तमर की फतह के बाद हजरत खालिद बिन वलीद इराक में अपने कदम मजबूती के साथ जमा चुके थे। उन्होंने सासानियों के कई बड़े अहम और तजारती शहरों को भी फतह कर लिया था। अगर सासानी फौजें मदाइन से निकलकर मुसलमानों पर हमला आवर भी होती तो मुसलमान इस काबिल थे कि वो इनको रोक सकते थे। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐनुल तमर के इंतजामात को दुरुस्त किया और हजरत काका बिन अमर को हिरा में अपना नायब मुकर्रर करने के बाद अपने चंद दस्ते ऐनुल तमर में छोड़े और 6000 की फौज के साथ ऐनुल तमर से दौमतुल जंदल की तरफ रवाना हो गए। दौमतुल जंदल के शहर में हजरत खालिद बिन वलीद की पेशकदमी की खबर इनसे काफी पहले पहुंच चुकी थी और किले में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई थीं। हजरत खालिद बिन वलीद की आमद की खबर सुनकर दौमतुल जंदल के शहरियों ने शहर का दिफा करने के लिए इस इलाके के मजीद बदवी कबाइल से मदद तलब की। इन कबाइल ने मुसलमानों के खिलाफ अरब ईसाइयों का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। इन कबाइल में कलब और गस्सान के कबीलों ने सबसे ज्यादा फौजी मदद रवाना की। इन दो मगरूर और अस्करी लिहाज से सबसे मजबूत कबाइल का इस जंग में हिस्सा लेने का मकसद मुसलमानों से अपने कबीले के लोगों के कत्ल का बदला लेना था। जो 630 और 631 ईस्वी की दौमतुल जंदल की लड़ाइयों और 633 ईस्वी में इराक की लड़ाइयों में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों कत्ल हुए थे। इसके अलावा फितना इर्तदाद के ज़माने में हजरत अमर बिन आस के बनु कलब पर हमले से भी इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा था। लिहाजा दौमतुल जंदल में ईसाई अरबों और बुत परस्त अरब कबाइल की इस कदर फौज जमा हो गई कि किले में इस फौज के लिए जगह कम पड़ गई, जिसकी वजह से आधी फौज को दौमतुल जंदल के बाहर ही खैमाजन होना पड़ा। ये फौजें हजरत खालिद बिन वलीद की आमद से पहले ही दौमतुल जंदल में जमा हो चुकी थीं, मगर इतना बड़ा लश्कर होने के बावजूद भी दौमतुल जंदल का हाकम उकैदर बिन अब्दुल मलक हजरत खालिद बिन वलीद का मुकाबला करने से कतरा रहा था, क्योंकि वो हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ देख चुका था। कई हफ्तों तक अयाज बिन गनम के लश्कर का मुकाबला करने वाला उकैदर बिन अब्दुल मलक हजरत खालिद के आते ही मैदान जंग छोड़ने की तैयारियां करने लगा। उकैदर ने तमाम कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और इनसे मशवरा किया कि वो हजरत खालिद के लश्कर का मुकाबला ना करें, नतीजा सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है।
उकैदर बिन अब्द अल मलक ने अपने सरदारों से कहा कि खालिद के सामने फारस जैसी अजीम शहनशाही की फौजें नहीं ठहर सकीं तो हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मगर इन तमाम सरदारों ने उकैदर के इस फैसले की मुखालफत की और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। जब उकैदर ने देखा कि अब खालिद बिन वलीद से लड़ाई हर सूरत में होकर रहेगी तो वो रात को अपने चंद मुहाफिजों के साथ किले से निकलकर उर्दन की जानब रवाना हुआ। मगर हजरत आसम बिन अमर ने इसे गिरफ्तार करके हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में पेश कर दिया। उकैदर ने हजरत खालिद से कहा कि वो जंग नहीं करना चाहता, बल्कि उसने दूसरे कबाइल को भी मुसलमानों से जंग करने से रोकने की कोशिश की है। उकैदर बिन अब्द अल मलक को ये उम्मीद थी कि हजरत खालिद बिन वलीद इसे माफ़ कर देंगे, जैसा कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ़ कर दिया था। मगर हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे इसकी बदअहदी की सज़ा देते हुए कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उकैदर के कत्ल के अगले दिन किले के अंदर और बाहर दोनों अतराफ की फौजें लड़ाई के लिए तैयार हो गईं। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लामी लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्से की कमान हजरत अयाज बिन गनम को देकर दोमतुल जंदल के जनूब में तैनात कर दिया, जहां से अरब यानी मक्का, मदीना और यमन को रास्ता जाता था। लश्कर के दूसरे हिस्से को दोमतुल जंदल के शुमाल मगरब में रखा, जहां से शाम और मिस्र को रास्ता जाता था। दोमतुल जंदल के किले के बाहर भी अरब ईसाइयों की फौज का एक बड़ा हिस्सा पड़ाव डाले हुए था, मगर इनकी फौज का ज्यादातर हिस्सा किले के अंदर मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद इस हालत में दोमतुल जंदल के किले पर हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस तरह हमला करने से दुश्मन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, बल्कि इस्लामी लश्कर के नुकसान के खतरात ज्यादा हैं। इसलिए आप चाहते थे कि ईसाई फौजें मुहासरे से तंग आकर किले से बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला करें और आमने सामने की लड़ाई में इनकी ताकत को तोड़ा जा सके। लिहाजा हमला करने के बजाय हजरत खालिद बिन वलीद ने इंतजार करने का फैसला किया। हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली के मुताबिक वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। ईसाई अरबों की फौजें मुहासरे से तंग आकर दो हिस्सों में तकसीम हो गईं और किले के दोनों अतराफ से बाहर निकलने लगीं। ईसाई लश्कर का वो हिस्सा जो हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले के लिए निकला, इस हिस्से की क़यादत जूदी बिन रबिया कर रहा था, और लश्कर का दूसरा हिस्सा जो अयाज बिन गनम के मुकाबले के लिए निकला, इसकी क़यादत इब्ने हदरजान और अलहम कर रहे थे। इब्ने हदरजान और अलहम के दस्तों ने हजरत अयाज बिन गनम के लश्कर पर हमला किया, मगर मुसलमानों ने इस हमले को कामयाबी के साथ पसपा कर दिया। दूसरी जानब जूदी बिन रबिया ने अपने दस्तों के साथ हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर पर हमला कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को इस तरह तरतीब दे रखा था कि जूदी अपने दस्तों समेत इनके घेरे में आ गया। जूदी बिन रबिया के सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, मगर हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसे हमले करवाए कि ईसाई अरबों के कदम उखड़ गए और वो मैदान जंग छोड़ने लगे। मगर इनका सरदार जूदी बिन रबिया गिरफ्तार हो गया। मैदान जंग से भागने वाले सिपाही भी किले में दाखिल ना हो सके, क्योंकि किले के मुहाफिजों ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। क्योंकि मुसलमान इन भागने वाले अरब ईसाइयों के पीछे इस तरह दौड़ रहे थे कि भागने वाले हर दूसरे ईसाई के साथ एक एक मुसलमान किले की तरफ आगे बढ़ रहा था। लिहाजा जूदी के लश्कर का एक भी सिपाही किले में दाखिल ना हो सका। कुछ ने तो हथियार डाल दिए और बाकी सब मैदान जंग में या भागते हुए मारे गए। जंग के ख़त्म होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने जूदी बिन रबिया और इसके साथ गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों को किले के दरवाजे के सामने ले जाकर कत्ल कर दिया, ताकि किले के मुहाफिज भी अपने सरदार और साथियों को कत्ल होते देखकर डर जाएं और इनके हौसले पस्त हो जाएं। मगर दोमतुल जंदल के मुहाफिजों ने हथियार डालने के बजाय लड़कर मरने को तरजीह दी। दोमतुल जंदल के मुहाफिजों की तादाद अब बहुत कम रह गई थी, क्योंकि इनके ज़्यादातर सिपाही जूदी बिन रबिया के साथ मारे जा चुके थे। लिहाजा अब हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को दोमतुल जंदल के किले पर जोरदार हमले का हुक्म दिया और एक खूनरेज लड़ाई के बाद दोमतुल जंदल को फतह कर लिया गया। बच्चों, औरतों और बूढ़ों को छोड़कर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले बाकी तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ चंद नौजवानों को गिरफ्तार करके मदीना भेजा गया। इस फतह के बाद पूरा खित्ता अरब अब मुसलमानों के कब्जे में आ गया। दोमतुल जंदल को फतह करने के बाद
حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ عراق واپس لوٹ گئے، کیونکہ ساسانی حضرت خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے خواب دیکھنے لگے تھے، اور ساسانی فوجیں مدائن سے نکل کر حسید اور خنافس میں جمع ہو رہی تھیں۔